Hi, Kavya. Hi. Congratulations for clearing the first module of CS Professional. Thank you so much. It's a big deal, in fact, that you were preparing for this module only for this attempt. Yeah. All right, so it's a big deal that you were able to clear this in the very first attempt that you have given. And I know that you have been associated with Superprofs for quite some time. Did you prepare Yeah. your? I've been taking classes from Super Prof since executive first group. Wow. Actually, I wasn't able to take for foundation because I wrote CPT basically. Then I Okay. shifted to CS. All right, all right. So you cleared the foundation level of CA and then you moved to CS. Yes. Yes. So why did you decide to, how did you decide to pursue CS instead of CA, and why was that shift? Actually, I'm a kind of my family background is something law, right? My parents are both advocates. They are in field of taxation. So it was very clear to me from the beginning that law is my field because I was quite interested in the field. Hmm. Then I wasn't able to clear CPT at once because sometimes giving CLAT, CPT, so it was a mismatch. I mean, clear nahi ho pa raha tha. हाँ जी, Then हाँ. my motivation was completely low by that time. अच्छा, So हाँ. when in my third attempt I cleared CPT, I was completely my motivation level Confidence was low. levels Yeah, काफी कम हो गए. confidence was also low. हाँ. So that time I thought maybe I should give CS. Hmm. अगर clear हो जाता है in case, then I'll look forward to CA. Hmm. Then after clearing CS, I entered into LLB. So basically, I never looked back to CA. राइट, बिकॉज सीएस में अपने आप काफी मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं. Yeah. सीएस अपने आप में काफी अच्छा करियर है, ऑप्शंस है. पहले स्टूडेंट्स को यूजुअली थोड़ा कम पता होता है, वो सीए के लिए ज्यादा जाते हैं. हाँ हाँ. एज यू ग्रो अप एंड मैच्योर, यू काइंड ऑफ लुक एट द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज. Yes, definitely. तो सीएस आपका अभी हाउ हैज योर जर्नी बीन? मतलब एक ही बार में अभी तक हर हाँ, मॉड्यूल? अभी तक मैंने जितने अटेम्प्ट्स दिए एक ही बार में क्लियर हो गए. ओके, एंड यू वर आप सारे मॉड्यूल्स के लिए वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सुपर प्रॉफ्स? या एक्चुअली फैकल्टीज अगर मतलब बाहर की भी थी तो वो ऑप्शन मुझे सुपर प्रॉफ्स ने ही प्रोवाइड किया था. हम्म. अच्छा, मतलब सजेशंस वगैरह के लिए. हाँ, सजेशंस इन द सेंस वो उनकी साइट पे ही अवेलेबल थे. लाइक हाँ, हाँ. तो आपको अभी तक कोई दिक्कत आई, मतलब द वे यू हैव बीन प्रिपेयरिंग विद सुपर प्रॉफ्स या ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज अभी तक आपको लगे हो? नहीं, मुझे ऐसे कोई खास इश्यूज तो नहीं लगे. बट इट वाज ऑल गुड. मतलब मुझे ऑनलाइन प्रिपरेशन आई प्रेफर इट बेटर देन गोइंग फॉर फिजिकल फेस टू क्लास. फेस क्लासेस. तो ऐसा क्यों? मतलब व्हाई डिड यू, आर यू अ वर्किंग प्रोफेशनल, व्हाई डिड यू प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस? See, one of the most reasons is that my father and mother both are tax consultants. So ओके. basically, right now I'm working under them. Since the time I joined CS, I have been working under them. अच्छा, हाँ. तो मेरे लिए बाहर जाके पढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का इसलिए हो जाता है बिकॉज फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स दे आर डिपेंडेंट ऑन मी in the office. So I cannot leave the office very immediate and I can go. Even when I take a leave for the examinations for my preparation, I finish up the work early, then I take a So break. you are like, you are completely like working a full time job only, and उसके Yeah. साथ पढ़ने के लिए फिर ऑनलाइन का ही ऑप्शन रहता है. हाँ, online का option है. And what all features did you use? Did you feel the need to revise lectures and watch them multiple times, because we provide like Depends unlimited? on the faculty. अच्छा. Seriously, I'm talking depends on the faculty. Mostly मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बट मुझे कहीं कहीं पे आप छोटे छोटे पॉइंट्स मिस कर जाते हो या फिर आपको कहीं पे आप टोटली ब्लैंक हो, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, वहां पे मुझे जरूरत पड़ी. जैसे कई बार डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं या बहुत ज्यादा याद करने का होता है, तो फिर वहां पे मल्टीपल व्यूज वैसे मुझे जल्दी से जरूरत इसलिए नहीं पड़ी बिकॉज मैं साथ के साथ नोट करते जाती हूँ. अच्छा. तो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, बट बहुत रेयर मुझे जरूरत पड़ती है रिवाइंड करके चेक करने की. करेक्ट. तो जैसे ऑफ ऑल द ऑनलाइन ऑप्शंस दैट यू, ऑनलाइन कोचिंग के लिए जो ऑप्शंस आपने सोचे होंगे पढ़ाई करने के लिए, व्हाई डिड यू गो विद सुपर प्रॉफ्स? सी, सुपर प्रॉफ्स के जो मैंने आपको सबसे बड़ा एडवांटेज बताया, फैकल्टी ऑप्शंस. एक सब्जेक्ट के लिए जो सुपर प्रॉफ्स मल्टीपल ऑप्शन देता है फैकल्टी के, यू कैन चूज फ्रॉम दोस. राइट. सेकंड ऑप्शन इज यू हैव अनलिमिटेड व्यूज. आई मीन आप बाहर जाके कहीं पे भी सर्च करोगे, दे हैव लिमिटेड, समवन हैज 2 व्यूज, 5 व्यूज.
तो फिर एक डर सा रहता है अंदर कि ओ माय गॉड बीच में पावर ऑफ हो गया, हालांकि लैपटॉप रहता है बट जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन की बैटरी भी लो है, तो अब क्या करोगे, वहां पे शट डाउन हो गया या फिर कोई मतलब चांसेस यू व्यू नेवर। अगर काउंट हो गया, बाई चांस व्यू काउंट हो गया, तो फिर वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। हाँ हाँ हाँ, ओके। और लैंग्वेज ऑप्शंस में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश या हिंदी मैं वाली? मोस्टली मिक्स लैंग्वेज ही लेती हूँ, मैं मतलब प्रॉपरली कभी इंग्लिश के लिए मैं नहीं जाती। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम आवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सुपरप्रॉफ्स, व्हाट अदर प्रिपरेशन रिसोर्सेज डिड यू यूज फॉर दिस क्लियरिंग दिस मॉड्यूल, या एग्जीक्यूटिव में भी प्रोफेशनल के लिए भी क्या किसी और चीज की जरूरत पड़ी? सी एक्चुअली जो मेरे टाइम पे तो एमसीक्यू था, अभी तो सिलेबस फिर चेंज हो गया है। तो मेरे टाइम पे 3 एमसीक्यू पेपर थे एग्जीक्यूटिव में। तो क्लासेस लेने के अलावा सिर्फ एमसीक्यू पेपर्स में, दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस अगर कोई फॉलो करना चाहे। मैं क्या करती थी, मैं एमसीक्यू की बुक्स मंगाती थी, 2500 एमसीक्यूज, 3000 एमसीक्यूज। तो उसमें क्या होता था, पहले मैं पूरा रीड कर लेती थी, फिर उसके बाद एमसीक्यूज की बुक सॉल्व करना। तो उसमें क्या होता है, रिपीटेड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस रहते हैं, प्लस इतने सारे आप एमसीक्यूज करके जाते हो। तो बिलीव मी, मैं अपने पेपर में खुद देख रखी हूँ, 100 मार्क्स में कम से कम भी 30 to 35 मार्क्स मैंने बस क्वेश्चन रीड किया है और उसे टिक किया है, मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन उस 2500 एमसीक्यूज में से ही आए थे। जब आप रिपीटेडली उसे करते रहते हो तो फिर आपको एग्जाम में इजी याद रह जाता है। हाँ, तो लेकिन ये तो ओल्ड सिलेबस के लिए था, क्योंकि हमने सीएस एग्जीक्यूटिव जो था ओल्ड सिलेबस में दिया था। जैसे सीएस प्रोफेशनल में आप न्यू सिलेबस की न्यू तैयारी कर रहे सिलेबस थे। के लिए मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ। सी बेसिकली जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं, मैंने अपने टाइम पे लॉ सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ एक ही फैकल्टी प्रेफर किया था, प्रोफेसर देव शर्मा। अच्छा। ही इज द ऑसम, बट राइट नाउ अभी उनकी क्लासेस अवेलेबल नहीं है। बट मेरी जो प्रिपरेशन क्राइटेरिया था लॉ सब्जेक्ट्स में, मैं बेसिकली क्लासेस सुनती थी, फिर मैं 2-3 रीडिंग लेके मेरा काम सब्जेक्टिव पेपर में हो जाता था। सब्जेक्टिव मेरे लिए इतना हार्ड कभी भी नहीं रहा है। करेक्ट। और बाकी मैं बहुत ज्यादा थैंक्स जो है, आपने जो फैकल्टी ऑप्शन दी और जिन फैकल्टीज की क्लासेस मैंने चूज की, मैं उन्हें दूंगी, बिकॉज एक तरह से सब्जेक्ट कवर कराना बहुत बड़ी बात होती है। अब एक सब्जेक्ट था कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, अब उसमें प्रोफेसर संजय विल्किंस पढ़ाते हैं वो। हाँ, तो मैंने उनकी क्लासेस आपके पास से परचेज की थी। उनके में बेस्ट क्या था, छोटी से छोटी चीज वो नोट डाउन करवाते, प्लस हर वैरायटी का क्वेश्चन वो फुल फॉर्मेट में सॉल्व करवाते थे। तो एक तरह से तो मेरे पास पूरे नोट्स हो गए थे। प्लस एक एडवाइस मैं और दूंगी, मैं एक काइंड ऑफ स्टूडेंट थी जो पूरा ही रिविजन करने में बिलीव रखती थी। करेक्ट। कि मैंने पूरे नोट्स बना लिए, देख लिए, कर लिए, अब मुझे पूरा फिर से रिविजन करना है। तो एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं था उस टाइम। फिर मेरे मामा, उन्होंने वो भी सीए हैं, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि यू डोंट रिवाइज लाइक दिस सीए एंड सीएस एग्जाम्स, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है। बहुत वास्ट सिलेबस है। तो बोले जो तुम्हारे पास नोट्स हैं जस्ट गो थ्रू इट, डोंट राइट डाउन एनीथिंग। करेक्ट। जब समझ में आ गया तो जस्ट गो थ्रू इट, डोंट राइट डाउन एनीथिंग, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और मेरे साथ सबसे माइनस क्राइटेरिया ये रहता है कि मैं एग्जाम के सिर्फ 2 महीने पहले ही प्रिपरेशन चालू करती हूँ। लाइक अच्छा। तो मैं अप्रैल में चालू करती हूँ, तो मेरे पास वैसे भी टाइम की बहुत कमी रहती है। तो पर इसलिए फिर, लेकिन आपने क्योंकि ऑनलाइन नोट्स पूरे मतलब अपने नोट्स अपने हैंड रिटन बना रखे थे, तो आपको काफी हेल्प मिला होगा उनसे, उससे ही रिवीजन हो गया होगा पूरा। ठीक है। तो आप व्हाट, बिकॉज यू वर वर्किंग आल्सो, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टडी प्लान डिड यू फॉलो, लाइक व्हाट वाज योर प्रिपरेशन शेड्यूल? जैसे आप बोल रहे हो कि 2 महीने में ही पढ़ाई करते थे, तो फिर तो और ज्यादा हेक्टिक हो जाता होगा। सो व्हाट वाज द शेड्यूल यू यूज्ड टू फॉलो? मेरा शेड्यूल प्लान ये रहता था, मैं आपको स्पेसिफिकली अपने एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 की बताती हूँ। अच्छा। 3 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें कि 2 तो मैंने प्रोफेसर शर्मा के लिए रखे थे, प्रोफेसर देव शर्मा। लाइक 1 लेक्चर दोनों सब्जेक्ट्स का, देन 2 लेक्चर्स आपके अकाउंट्स के। ऑडिट मैंने लेक्चर्स लिए थे, बट मेरे पास टाइम नहीं था प्रिपरेशन के लिए। लास्ट 15 डेज हो गए थे एंड आई डिडंट इवन टच ऑडिट। अच्छा। आई बेसिकली प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम स्कैनर, क्योंकि मुझे ये रिकमेंडेशन मिली मामा से ही कि जब तुम्हारा 30 मार्क्स का है तो व्हाई आर यू वरीड, लाइक काइंड ऑफ। करेक्ट। हाँ, मतलब फिर क्योंकि टाइम कम था तो आपने उस वेटेज के हिसाब से उसको प्रिपेयर कर लिया। वेटेज के हिसाब से मैंने पूरा स्कैनर से प्रिपेयर किया था ऑडिट। अच्छा। और बाकी एक प्लस पॉइंट प्रोफेसर देव शर्मा के साथ ये है
कि आप उनकी क्लासेस लेने के बाद आप चीजों को भूल नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से वो पढ़ाते हैं वो याद होता हाँ, चीजें दिमाग में याद हो जाती है, है। और उसके बाद 1 या 2 सिंपल रीडिंग काफी है टू क्लियर अप द एग्जाम्स। बस उनके नोट्स, उनकी क्लासेस, एंड दैट्स इट। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन मतलब जैसे व्हाट वाज योर शेड्यूल, आप सुबह पढ़ते थे या शाम को पढ़ते थे? वर्किंग के साथ मतलब मैनेज कैसे करते थे वो, हाउ वाज योर डे लाइक? वही जब मैं वर्किंग रहती हूँ तब मैं पढ़ती नहीं हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ तब मैं वर्किंग नहीं अच्छा अच्छा, यू सो यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर हाँ, वर्क एंड फुल टाइम फिर आप पढ़ाई ही करते क्या हो। श्योर। ओके। हाँ, सो दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। मतलब 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक ले सकते हैं एंड देन यू कैन कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट। यस। हाँ, बिकॉज अदरवाइज दोनों चीज अगर साथ में करेंगे तो फिर इधर यू हैव टू, मतलब या तो वर्क एंड से थोड़ा लाइट हो। आप मैं ये भी मैंने कई बार ट्राई किया कि मैं फर्स्ट हाफ वर्क पे जाके सेकेंड हाफ बैठ के पढ़ लूं, बट दैट डिडंट वर्क फॉर मी एट ऑल। सो अच्छा, बेसिकली मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मैं फुल ब्रेक लेके ही पढ़ाई करूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे जैसे आपने काफी टिप्स दिए जैसे लॉ के बारे में या फिर प्रिपरेशन शेड्यूल के बारे में, आर देयर एनी मोर टिप्स फॉर सीएस प्रोफेशनल? क्योंकि स्पेशली न्यू सिलेबस से आपने पढ़ाई की है सीएस प्रोफेशनल के लिए, हाँ सो जी, सीएस प्रोफेशनल के लिए तो काफी मतलब रिसोर्सेज नहीं होंगे मार्केट में, तो उसके लिए व्हाट ऑल हाँ, रिसोर्सेज डिड यू मैं यूज? आपको बताती हूँ। व्हाट वाज ड्राफ्टिंग, लेट्स कम टू ड्राफ्टिंग। हम्म एज आई सेड कि प्रोफेसर देव शर्मा की क्लासेस अगर अवेलेबल है तो मैं कोई भी ले लूंगी, और हम्म तो हम्म उनकी ओल्ड सिलेबस में अवेलेबल थी, तो हम्म, ओल्ड सिलेबस लेके मैंने कंप्लीट कर लिया। करेक्ट। हाँ। ठीक है, दैट्स इनफ। अब न्यू सिलेबस से कितना आएगा, हार्डली 20% एड ऑन हुआ था, आप मान के चलो हम्म 10-15 मार्क्स भी पूछेगा। हम्म तो मैंने टिक कर लिया कि क्या क्या टॉपिक्स उनकी बुक में नहीं दिए हैं, तो फिर हम्म, जो स्टडी मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का था मैंने वो टॉपिक्स स्टडी मॉड्यूल से कवर अप कर लिए। करेक्ट। हाँ तो ड्राफ्टिंग तो फिर मेरा स्मूथ चला गया। हाँ। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट था गवर्नेंस, उसमें तो आपको स्टोरी पता ही है। हम्म तो थैंक्स टू प्रोफेसर पिगलानी, उन्होंने मुझे जो टॉपिक्स बताए, मैंने उसके अलावा और प्रिपरेशन कर ली थी, हम्म, बट उनके बताए हुए टॉपिक्स से आप मान के चलो 90% पेपर आ गया था। अच्छा, ओके। हाँ, तो थोड़ा सा इशू वहां पे रहा था अदरवाइज वीडियो हाँ क्लासेस में, पर हाँ, जो प्रोफेसर मिगलानी ने आपको हेल्प किया, आप कह रहे हो उससे 90% आ गया था। 90%, मैं 92 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आई थी पेपर। वाह। हाँ। सो आई स्कोर्ड 51। अच्छा। हाँ एंड टैक्स लॉस, हाँ मैं अभी भी लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ, हाँ। डायरेक्ट टैक्सेस में यू प्रोवाइड फॉर सीएमए राजेश कुमार, राइट। हाँ। पीपल कैन प्रेफर हिम। और हम्म। मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, आई गो फॉर वाइट बोर्ड टीचिंग। मतलब अच्छा। जो प्रेजेंटेशन से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कौन सा पढ़ाते हैं वो आपको अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, मैं फिर उन फैकल्टीज की तरफ देखती हूँ, मुझे व्हाइट बोर्ड ही अच्छा लगता है पढ़ने में। लगता? तो मैं हमेशा मतलब फैकल्टी तो सबसे पहले उनको सेलेक्ट आउट करती हूँ जो व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहे हैं, फिर उनमें से ऑप्शन है तो चूज करती हूँ। करेक्ट, सही है। तो और सब्जेक्ट मैटर टिप्स, एनी अदर सजेशन? जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं मोटिवेशन लूज कर देते हैं, जैसे इट वाज विद यू कि आप सीपीटी के बाद थोड़ा मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस लूज किया, देन यू डिसाइडेड, तो व्हाट आर योर टिप्स जो जेनेरिक होते हैं, मतलब मोटिवेशन के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करने के कि लिए? एक चीज होती है कि जब आपका एग्जाम क्लियर होने लगता है, हम्म। आपका मोटिवेशन लेवल बिल्डअप होने लग जाता है, राइट। राइट। तो मेरे साथ तो प्लस पॉइंट था माय पेरेंट्स सपोर्ट। हम्म उनका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा रहा है मेरी लाइफ में, हम्म जब मैं डाउन गई हूँ, अप आई हूँ, हर चीज में। हम्म एक तो पेरेंट्स बहुत बड़े फैक्टर होते हैं कि आप कोई भी हम्म चीज इजीली कर लो लाइफ में। हम्म दूसरा, मेरा भी मोटिवेशन लेवल लो हुआ था, हम्म, बट उसके बाद जब कंटिन्यूअसली मेरे एग्जाम्स क्लियर होने लगे तो तो वो बिल्डअप होता था। बिल्डअप हो गया। तो मैं इसके अलावा और क्या सजेशन दे सकती हूँ, जो मैंने मतलब इतना ही हुआ है मेरे साथ कि बस एग्जाम्स क्लियर हुए एंड इट बिल्डेड अप अगेन। मतलब मैंने जो प्रॉब्लम देखी थी वो मैंने वन टाइम प्रॉब्लम देखी थी कि हम्म। एक ही बार में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। फिर मेरे साथ ये चीज अभी रिपीट तो नहीं हुई है कि थोड़ा जो माइंड ब्लॉक भी हो जाता है क्योंकि सीपीटी जब 2 बार नहीं निकला तो थोड़ा उससे डर भी लगने लगता है, तो हाँ ये हाँ इशू हो जाता है। करेक्ट। एंड देन द स्ट्रेटेजी दैट यू एम्प्लॉयड वाज कि मतलब ठीक है, पहले मैं जब काम कर रही हूँ तो काम ही करूंगी, जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो पढ़ाई ही करूंगी, हाँ तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि याद रहने लगता है जो जो तुम लगातार। एक्चुअली कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है पढ़ाई में। हाँ, काफी चीजें आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी अप्लाई कर पाते हो हम्म एग्जाम्स। सोच हम्म पाते हो कि हाँ उस टाइम ऐसे करा था मैंने, मम्मी पापा को ऐसे करते हुए देखा था मैंने हम्म किसी भी चीज में।
तो कहीं कहीं आप जैसे डाउटफुल हो जाते हो, अरे अब इसमें क्या करूं, तो फिर कुछ बहुत मुझे तो बहुत रेयर प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम में हेल्प मिलती है, बिकॉज जहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो करेक्ट। एरिया में कंपनी केसेस बहुत कम, मतलब ना के बराबर होते हैं। अच्छा। यहाँ पे कंपनी ऑप्शंस हैं ही नहीं, मतलब कंपनी ऑप्शंस चाहिए तो फिर यहाँ से 300 किलोमीटर ट्रैवल करके थोड़ी एक बड़ी सिटी में और बड़ी सिटी में जाओगे तो वहां पे कंपनी ऑप्शन है। तो अच्छा। बेसिकली मैं जो वर्क करती हूँ वो पार्टनरशिप है, एचसीएफ है, इंडिविजुअल है, जीएसटी भी इन्हीं सारी चीजों में है। अच्छा। तो स्मॉल यहाँ टर्म पे बिजनेसेस हाँ बेसिकली। हाँ, तो देखिए आप मोस्टली एग्जाम्स में देखोगे तो आपके शेयर्स, कंपनीज, इन सारी चीजों को लेके क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से बहुत ही कम अभी तक बेनिफिट हुआ है, बट फिर भी अगर आप 5 मार्क्स का भी करेक्ट करके आ जाते हो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की वजह से तो इट काउंट्स, मतलब। हाँ, मतलब क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, साथ साथ आप उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो, एंड जितना मेनली तो नॉलेज का एप्लीकेशन होना ज्यादा जरूरी है। यस। राइट। चलिए ठीक है। ऑलराइट काव्या, आई एम श्योर योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड एंड यू मस्ट बी वेरी हैप्पी अबाउट क्लियरिंग ईच ऑफ दीज मॉड्यूल्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. Definitely they are. All right. Anything specifically that you want to convey to any of the professors, or any feature that you would like to mention from SuperProfs? I would really, really, really like to thank Professor Dev Sharma. I'm a very huge fan. I mean, इतना बढ़िया लॉ समझाना, इतने अच्छे कंसेप्ट, मतलब जो उनकी स्ट्रैटेजी है ना कि रटना नहीं है, समझना है। करेक्ट। हाँ। मतलब वो टोटली उस चीज को अप्लाई करते हैं, मतलब वो आंखों को इस तरह से खोल देते हैं कि उन्होंने जो टॉपिक्स नहीं भी पढ़ा है और उसे खुद भी पढ़ना है। लाइक मैं एलएलबी स्टूडेंट भी हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे टॉपिक्स मेरे इसमें कवर अप हो गए ऐसे। तो उसमें भी हेल्प मिला आपको? मैं अपने आप ही ना चीजों को समझने की कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू, rather than उनको रटने की जगह। वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम एंड स्पेशली प्रोफेसर देव शर्मा। उनकी वजह से आज जो मेरी लॉ की पोजीशन है ना, ऑलमोस्ट वेरी वेरी गुड। Okay. Chalo, congratulations and all the best for your next module. I hope you clear that also in the very first attempt, and then you'll be a practicing CS. Thank you.